Hello, how are you students? I hope you all are fine. So after a long time, today we are going to do the chapter. So what we are going to do today is chapter number 21, data handling. Okay, what we are going to do, chapter number 8, 21, data handling. So first of all, please make it understand the meaning of data handling. What? Data handling. Data means in the information. The information that we are collected from the many sources, like from the census. For the census means the population counting होती है. There are many other surveys. बहुत से surveys होते हैं जो आपके locality में, sometimes in your schools and all, put held. Okay, so the information that you are gathered, and make it keep it in your mind that the data and that mean information must be true if you are asking about anything very true. But when you are doing data handling, so this is all the fake information. Okay, otherwise data, the information means the true information. Okay, so data means information and handling means to handle it, how to write it in a proper way, proper manner, and how to find out the particular and the required information out of it is called handling. So the information and handling means how to handle it, उसे manage कैसे करना है, उसे tabulate कैसे करना है, and how we can get the required information from the given information. ठीक है. So first of all, there are many ways how to represent, how to handle the data, the informations you have. So first one is pictograph. Picto means, the word picto means picture. Okay, any graph, anything which you represent through the picture is called pictograph. Okay, data collected and presented in the form of symbols and pictures is called a pictograph. A suitable symbol or a picture is selected to represent the data. ठीक है, आपको एक सुटेबल सिंबल या पिक्चर सेलेक्ट करना होता है पहले से ही टू रिप्रेजेंट द डाटा. नाउ एग्जाम्पल, just take out the examples and look it very carefully. Then I'll show you it how we can do it in copy and how we can extract the information from the given pictograph. So the number of students who like swimming is given below. Okay, क्लास वाइज दिया हुआ है. क्लास 1 में 5 स्टूडेंट्स, क्लास 2 15, क्लास 3 10, क्लास 4 20, क्लास 5 25. देखिए स्टार 3. अब आपने हैव यू नोटिस्ड इट के जहाँ पे 5 है वहाँ 1 बना है, जहाँ 15 है वहाँ 3 बना है. तो उन्होंने क्या किया है, ये जो डेटा है इसको 5 से डिवाइड किया है. तो आप इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा. जब आप 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 5 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 2. जब आप 20 को 5 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 4. तो इन्होंने ये जो नंबर्स दे विल गेट यू ना, तो आपको ये वाला स्टार देखिए, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, स्केल 1, मतलब 1 स्टार व्हेन यू ड्रॉ इट मीन्स 5 स्टूडेंट्स. इसीलिए यू हैव टू डिवाइड द गिवन डेटा, जो आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दी है उसे आप 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि बिकॉज दे हैव मैंशनड यू, और आपको भी मैंशन करना है दैट 1 स्टार और जो भी सिंबल, जो भी शेप आप ले रहे हैं, द गिवन taken shape and symbol, how many things it was representing. That's why 1 3 2 4 and 5. Okay, now come to the question, how can we get the information or how can we give the answers of the question for the given information if it is given to you. Okay, so following pictograph shows the number of the cycles sold by a shopkeeper. एक शॉपकीपर ने कितने साइकिल सोल्ड किए? जनवरी में 4, फरवरी में 3. अभी आप सिर्फ पिक्टोग्राफ को देखिए, इसे नहीं देखेंगे, मैम ने सॉल्व किया हुआ है क्योंकि आपके रहे ही ऑलरेडी. ठीक है, 4 3 4 3 2. ओके, जनवरी. नाउ स्केल 100, ये स्केल 1 की जगह गलती से 100 लिख दिया है. 1 साइकिल रिप्रेजेंट 10 साइकिल्स, मतलब एक साइकिल है तो 10. तो अब अगर आपको ड्रॉ करना होता है पिक्टोग्राफ तो आप इस डिवाइड कर देंगे नंबर को, क्योंकि नंबर दिया हुआ है. लेकिन अगर आपको पिक्टोग्राफ गिवन है और उन्होंने स्केल में दिया है तो आप इसको 4 है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन 40, क्योंकि 10 + 10 + 10 + 10 इन्होंने कहा है ना. स्केल क्या है? 10 साइकिल्स. इन विच मंथ मैक्सिमम साइकिल्स वर सोल्ड? तो 40 and 40, जनवरी एंड मार्च. ओके, हाउ मेनी साइकिल्स वर सोल्ड इन जनवरी? 40, मार्च 40, अप्रैल 30. इन विच मंथ लीस्ट साइकिल्स वर सोल्ड? किसमें सबसे कम? तो मे, बिकॉज मे हैज़ 20 साइकिल्स. वट इज़ द टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स सोल्ड इन फर्स्ट 3 मंथ? 3 मंथ में 40 and 40, 80 and 3 30, 110.
हाउ मेनी मोर साइकिल्स वर सोल्ड इन मार्च देन मे में 20 है, मार्च में 40 हैं, तो इनका डिफरेंस आप लिख देंगे 40 माइनस 20 साइकिल्स, ठीक है। नाउ रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन थ्रू अ पिक्टोग्राफ्स यूजिंग सिम्बल्स एंड स्केल, ठीक है। सिम्बल एंड स्केल बोथ यू हैव टू यूज। दिस इज द फ्लेवर्स ऑफ द आइसक्रीम। वनीला आइसक्रीम 10, स्ट्रॉबेरी 20, मैंगो 15, बटरस्कॉच 25 एंड पाइनएप्पल 35, ओके। तो ये है, अब आपको ड्रॉ करना है। सो आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन इट फॉर यू ऑल दैट हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ इट। देखो बेटा, मैंने पहले से आपको स्केल पहले मेंशन करना है। दिस इज आइसक्रीम फ्लेवर्स, हाउ यू मेक द टेबल, आइसक्रीम फ्लेवर्स एंड नंबर ऑफ आइसक्रीम्स, ओके। सो क्या है, 1 आइसक्रीम इज इक्वल्स टू 5 आइसक्रीम्स, ठीक है। मतलब अगर मैं 1 आइसक्रीम ड्रॉ करती हूँ, इट मीन्स स्टैंड्स फॉर 5। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें इसे डिवाइड करना है अगेन 5 से, तो यू विल गेट हाउ मेनी आइसक्रीम यू हैव टू ड्रॉ। ठीक है, इसी तरीके से आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो इतनी ही आइसक्रीम्स आपको ड्रॉ करनी है जितना डिवाइड करके आपके पास क्वेश्चन में आंसर आया। ये देखिए बेटा, वनीला में थी 10, तो आपने 2 आइसक्रीम ड्रॉ की, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी मेंशन दैट 1 आइसक्रीम इज इक्वल्स टू 5 आइसक्रीम्स, ठीक है। 1 आइसक्रीम सिंबल, ओके। स्ट्रॉबेरी 4 बिकॉज 20 दिया हुआ था, ठीक है। मैंगो 3 बिकॉज 15 था, बटरस्कॉच 5 बिकॉज 25 एंड पाइनएप्पल 35 मीन्स 7, ओके। तो आइसक्रीम्स आ गई, ठीक है। नेक्स्ट ये है पिक्टोग्राफ। अब हम आते हैं नेक्स्ट बार ग्राफ। बार ग्राफ मीन्स जो चॉकलेट का आपने खाई है ना चॉकलेट, तो चोको बार, बार मीन्स कुछ भी चीज़ जो रेक्टेंगल हो। अनदर इजी वे टू रिप्रेजेंट द डाटा इज थ्रू द बार ग्राफ, ठीक है। बार ग्राफ होता है, दिस मेथड इज़ क्वाइट पॉपुलर इन इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ मतलब किसी भी कंपनी में ये होता है, जैसे रिप्रेजेंट। अब इससे आप इन्फॉर्मेशन निकालना भी सीखेंगे और बार ग्राफ को ड्रॉ करना भी, ठीक है। उत्सव के 5 मार्क्स हैं, सात्विक के 9, ध्वनि के 6, अमित के 8, अंकित के 3। तो इन्होंने देखिए ये ऐसे ड्रॉ करते हैं बार, मैंने कहा था ना स्ट्राइप्स। तो ये ऐसा बार ग्राफ आता है, आप उस पर भी ड्रॉ कर सकते हैं और कॉपी पे भी। अभी आप के में ज़्यादा है नहीं, 2 ही हैं ड्रॉ करने के लिए, तो आप इन्हें ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे आपने स्केल बनाया ये 1 से 10 तक है, क्योंकि इनके मार्क्स ऐसे ही थे। लेकिन अगर गैप बहुत ज़्यादा है, आप बहुत बड़ा नहीं बना सकते, तो आप इस गैप को 2 का भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ 0 है तो 2, 4, 6, 8, 10, फिर आपको वो गैप मेंटेन करना होगा। अगर आपने यहाँ से 0 से यहाँ 2 लिखा है, दैट मीन आपको 2 का गैप यहाँ रखना है। अगर आपने यहाँ फर्स्ट नंबर 5 लिखा है, तो आपको 5 का गैप पूरा रखना है, क्योंकि इसका मतलब होता है ये 0 है तो 0 से जितना भी गैप आपने मेंटेन किया है फर्स्ट स्टेप में, आपको फर्दर स्टेप्स में वही गैप मेंटेन करना होगा, ठीक है। अब देखिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा थ्रू अ बार ग्राफ। आपको इसमें बार ग्राफ बनाना है। टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन जनवरी में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन का आपको दिया हुआ है। 8, 12, 10, 14, 8, ठीक है। अब देखिए मैम ने ये भी आपके लिए ड्रॉ करके रखा है, आई विल शो इट टू यू। ये देखिए बेटा, जैसे देखिए मैंने अब इसमें क्या किया है, 0 के बाद मैंने 2 लिखा है, तो 2 का गैप मुझे मेंटेन करना होगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ठीक है। जितना आपका हाईएस्ट है आप उतना बना सकते हैं, या उससे थोड़ा ऊपर भी जा सकते हैं। तो मंडे का था 8, आप ये स्केल्स प्रॉपर करेंगे, नहीं तो आपको बार ग्राफ पे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने किया तो 8 था। ट्यूसडे का बेटा इन्होंने गिवन है 12, तो मैंने 12 किया है, ओके। 12 तक जा रहा है, ठीक है। मैंने ये लाइन्स पहले स्केल से ड्रॉ की थी प्रॉपरली, तो आप भी स्केल से प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वेंसडे का 10 है, तो आई विल मार्क इट ऑन 10, देन 14। ट्यूसडे के बाद वेंसडे, आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं, यू हैव टू मेंशन इट, ठीक है। वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप डिफरेंट कलर कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको मेंशन करना होगा कि एक जो कलर, लाइक आपने यहाँ पे पिंक किया तो पिंक कलर मंडे को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड किया तो रेड कलर ट्यूसडे को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपको मेंशन करना ही होगा। यू हैव टू मेंशन इट वेरी केयरफुली कि आपने जो कलर फिल किया है, ठीक है। अदरवाइज आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं कि ये मंडे का टेम्परेचर है, ट्यूसडे का है। ये लिखना भी बहुत कंपलसरी है, डेज, ठीक है। आप कहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेम्परेचर। जो चीज़ नंबर्स में दी है वो आप स्टैंडिंग लाइन पे ही, दैट मीन वर्टिकल लाइन पे ही रिप्रेजेंट कीजिए, तो उससे इजी होता है
ऐसे वाला ग्राफ बनाना जो वर्टिकल होता है वो थोड़ा हॉरिजॉन्टल होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो आपको वही करना है। ठीक है, आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। पूरा चैप्टर 21 हमने किया है। नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके, so we have completed it. Please do the exercise 21.1 and 21.2 carefully. Okay, and draw the question number 2 bar graph by yourself. Okay, till then, bye.